Good evening, everyone. Nice to see a lot of people joining in. Gallery Pradarshak is now showing Expression 1, which is a show on abstracts, and we have 10 artists showing with us. Artist Rakesh Chandra Jena is one of them, and we're going to have a nice session with him this evening where he's going to demonstrate a little bit of his art, and he's going to talk to us about the healing effects of art. Let me tell you a little bit about Rakesh Chandra Jena. He's an artist who was born in Bhubaneswar, and he completed his education, his Bachelor of Visual Arts in Bhubaneswar, also from the Art and Craft College in Bhubaneswar, Odisha. After completing his studies, he joined a rehabilitation center where he worked with children on the healing aspects of art. After working there for a very long time as an art therapist, where in the interim he also worked with the great artist Jatin Das. He worked with Jagannath Panda, and he also worked with the person who is now director of the NGMA in Delhi, and that is Advaita Gadnayak. So, after having worked with so many people, he now works at Mumbai in a school in Goregaon, where he is teaching children the different effects of color, how color impacts the emotion, how color impacts well being. So, we have Rakesh Chandra Jena here with us. Rakesh, I invite you to join us. Hi, Rakesh. Good. Hello. Hi everyone. So, this is Rakesh Chandra Jena for you, who is an artist and an art therapist. Rakesh, I have just told people all about what you do, but we would like to see you in action. So, I think it would be nice that we begin with a small demo. Yeah, Uh, sure. Show us how you paint, how you play with color. Let's start. Yeah, sure. Rakesh, you will have to put the camera on your painting. Can't really see it. Yeah, Okay. that's better. That's better. Okay. Done. Mm, mm. Rakesh, once again, we cannot see what you're doing. Huh? Yeah.
Uh, yeah, Yeah. Can you see it? that's Yeah. now we can. Yeah. Now this one is done. This is I'll just another one. Yeah. I'll just try to another one. Okay. Then now you can see I have to done two paintings like I use a warm color one is here and this was I use cool color blue like this. Mm-hmm. I'm just yeah दो तरह के मैंने कलर यूज किया है एक वार्म कलर एंड कूल कलर तो एक्चुअली ये चीज अगर हम देखा जाए तो कूल दो ही चीज एक नाइट डे और हमारी जिंदगी में दो ही चीज होता है एक खाली होता है एक फुल होता है ताकि कोई भी चीज हो कोई भी एक्टिविटीज हो तो दो ही चीज में होता है एक डे नाइट एम्प्टी फुल ये चीज में जब भी कुछ भी चीज बने है ना तो वही में एक एक्टिविटीज बनती है कुछ चीज बनता है तो एक एम्प्टी रहता है एक फुल रहता है तो सेम चीज एक वार्म और एक कूल कलर हम जो यूज करते हैं हर आर्टिस्ट को पता है कि हम हर चीज को एक वार्म कलर एंड कूल कलर को यूज करते हैं है ना जैसे रेड येलो उस वार्म कलर की तरफ जाते हैं ब्लू ब्लैक ऐसे वार्म कूल तरफ के जाते हैं तो काफी ये जो चीज है हमें कहीं ना कहीं हमको एक इंट्यूशन होता है हर हमारे अंदर में जैसे मान लो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हमको गर्मी लगता है एक ह्यूमन जैसे हम मतलब गर्मी लगता है तो हमको जब इच्छा होता है हमारा अंदर ही बोलता है कि हमें इच्छा होता है कि हम आइसक्रीम खाए कुछ ठंडा चीज खाए ताकि हम फील गुड क्योंकि ये हमारे अंदर से एक हमको होता है ये नेचर हमको बोलता है कि हम ये चीज चाहिए और जब हमको बहुत ठंडी लगता है तो हम कई गर्म चीज खाने को इच्छा करते हैं चाय पकौड़ा है ना ये जो नेचर का जो ब्यूटीफुल चीज है जो ऑटोमेटिक सिस्टम्स है वो जो उसको बोलते हैं एक श्रृंखल है ना ये जो एक श्रृंखल चीज में हम सब जाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं हर चीज को मिला के और कुछ कुछ चीज को उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और टैग देते हैं मान लो एक पत्थर को लिया हमने उसको मूर्ति बनाए हमें उसको है ना कुछ यूजफुल चीज बनाए तो ये रॉ है ये सब चीज प्रकृति हमको रॉ दिया है तो हम उसको एक रिकल करते हैं मान लो मैं जितने सारे मेरे पेंटिंग में मैंने कलर्स को यूज करता हूँ उसका रिदिम और उसको वो सब क्या होता है और मैं स्पॉन्टेनियसली कोई मेरे काम के सामने में बैठता हूँ और उसमें मैं ऐसे बैठ के मैं सिर्फ कलर और देखता हूँ और मुझे जो फील होता है तो फिर मैं डायरेक्ट जैसे मैंने आपके सामने रखा है कलर लिया और मैंने सामने से कुछ ब्लैंक कैनवास या सरफेस लिया यानी कोई भी मैंने उठा के लिया और उसमें मैंने स्प्रेड किया मैंने वैसे कलर भी थ्रो किया कोई इसमें बाउंड नहीं है और इसमें क्या होता है मैं जब उस कलर को देखता हूँ फिर मैं फील होता है कि मुझे ये कलर नहीं चाहिए
मुझे ये कलर चाहिए, मुझे अभी ये खाना है, मुझे नहीं खाना, ये जो पर्सपेक्टिव आता है मेरे अंदर, तो ये धीरे धीरे एक पेंटिंग बन जाता है। पेंटिंग में कोई सोच के नहीं बना रहा हूँ, कोई रिसर्च नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो प्रकृति ने सब कुछ दिया है हमको, है ना, तो हम अगर उसको बनाने जाएंगे तो बहुत सारी चीज ऐसे बन जाएगा, टैग हो जाएगा, ये सब इसका नाम दे पाएंगे, इसका टैग हो जाएगा। मुझे लगता है ये मेरे पर्सपेक्टिव से ये एक सीमित हो जाएगा। तो जब हम बढ़ते इसको मैं इसीलिए हीलिंग बोलता हूँ कि मैं उसके सामने बैठता हूँ और मुझे कलर अपने आप बोलता है कि मुझे ये चाहिए, और मैं अपने मन से बोलता हूँ कि मुझे ये कलर यहाँ पे अच्छा लगता है। जैसे ये फूल, और मैंने कहीं सारी चीज में यहाँ पे कुछ डार्क्स और कुछ लाइट्स, यहाँ पे मैंने डार्क ग्रीन, ब्लू और पर्पल, ये सब उसका अभी कहीं कितने सारे मेरे पेंटिंग ऐसे देखेंगे तो वो शेड्स का जो नियम होता है, जो एग्जिस्टिंग होता है कि रेड, ऑरेंज, येलो, लाइटेस्ट टू डार्क, है ना, डार्क एगेंस्ट टू लाइट, और जो श्रृंखल नियम होता है कहीं कहीं इसमें दिखते हैं। और उसमें हम हमारा आईज जो है, हमारा विजुअल लैंग्वेज है, उसमें हम परसीव करते हैं, हम हमारे हमारे दिमाग में बैठता है। तब हम क्या करते हैं, हमारे वो रिकल करते हैं, हमारे हमारे जो चीज को हम रिकल करते हैं, फिर हम धीरे धीरे हम वो चीज को जो हमको अच्छा लगे, जो हमारा एबिलिटी है, उसको हम एनहांस करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। पेंटिंग इज नथिंग, एवरीथिंग इज नथिंग, हम ऐसे बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं है। फिर भी हमको मान लीजिए मैं एक सामने बैठा हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ और मुझे क्या सोचना है, ये सेल्फ जजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस के लिए, है ना, तो हमको रिकॉल करना पड़ेगा क्या पिछले टाइम पे हमें क्या गलती कर लिया था, क्या हुआ था। तो हमको रिकॉल करने के लिए एक ब्यूटीफुल चीज होना चाहिए जो हमको वो चीज को हमको कॉल करे कि ये चीज आपका करना जरूरी है। तो सेम चीज मैंने पेंटिंग, क्योंकि हमको विजुअल हंगर जो होता है ना, मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ कि पेंटिंग मैंने सोच के नहीं बनाया, और मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये मेरा आईज और मेरा विजुअल हंगर है, मैं कर लिया और मुझे वाव फील हुआ, और दैट इज माय हीलिंग पर्सपेक्टिव, दैट इज माय हीलिंग प्रॉपर्टी, ये मेरे लिए That हुआ। becomes तो मैं ये that becomes your self healing. But how do या you use color to heal others? आप जैसे एक अरे आर्ट थेरेपिस्ट के नाते आप स्कूल में काम कर रहे हो या आपने स्पेशल चिल्ड्रन से काम किया, तो हाउ डू यू यूज कलर टू हील अदर्स? क्या कलर्स की कोई मीनिंग है, कोई इमोशंस हैं, उसके बारे में बताइए। या डेफिनेटली कलर, आप हम जानते हैं हर चीज का एक भाषा होती है, एक उसका लाइट्स होते हैं, कलर होता है, तभी हम पहचानते हैं, है ना। जब हम विजुअल आर्ट पढ़ते हैं तो आर्ट की परिभाषा होती है, हम वही चीज को हम पढ़े, जो हमें दिखता है वही हम पुट करते हैं, है ना, जैसा दिखता है हम उसको ही पुट करते हैं, रियलाइज करते हैं, फील करते हैं कि वो ऐसा इंसान है, वैसा इंसान है, वैसा कलर है, दैट्स ऐसा ऐसा मोमेंट है। तो वो कलर जब मैंने ये चीज को रियलाइज किया, मैंने काफी रियलिस्टिक ये सब किया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है रियलिस्टिक, मैंने सब किया। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगा कि ये जो चीज है हम उसको कैसे अपने वेलबींग, मेंटल हेल्थ वेलबींग के लिए हम यूज करें, क्या इसका बेनिफिट है। जैसे मुझे इतना वाव फील होता है, कुछ कोई पार्टी वगैरह होते हैं, कलरफुल ड्रेस पहन के आते हैं, हाँ कुछ तो वाइब्रेंट लगते हैं, कुछ कूल लगते हैं, कुछ, लेकिन कुछ अच्छा लगता है, कुछ हमको फील गुड, है ना, कुछ एंथुजियाज्म लगता है। तो वो चीज हमने पुट की है, और मैंने जो प्रोफेशनली आर्ट थेरेपी काम कर रहा हूँ 7 ईयर हो गया, वो बच्चे में मैंने काफी बच्चे के साथ काम किया, ऑटिज्म और मेंटल रिटायर्ड और सेरेबल पसी, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। और जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं वो हाई फंक्शनिंग होते हैं, और उनके में एंजाइटी ज्यादा होती है और चिड़चिड़ा, ये सब चीज होता है। तो हमने देखा उसमें अगर हमने यूज करते हैं कलर्स का, जैसे उनका सेंसरी इश्यूज होते हैं, टैक्टाइल इश्यूज होते हैं, जैसे हर चीज को उसको छूना, हर चीज को फील करना, उसको सेंसरी नीड्स के लिए जो जो यूज करना, स्मेल, टेस्ट, समथिंग, तो वो चीज को हमने यूज किया। ऐसे भी होता है क्योंकि हर आप साइकोलॉजी सेक्टर में देखेंगे, काउंसलिंग सेक्टर में देखेंगे, ये सब चीज यूज होता है, और ये ज्यादा नहीं होता है, एनहेंस नहीं करते हैं, लेकिन हमने ये चीज यूज किया उनके साथ, बच्चे के साथ। मान लीजिए बच्चे टैक्टाइल इश्यूज, उसको बहुत जरूरी है, टच एंड फील बहुत जरूरी है,
उसको हमने टेक्सचर जैसे यूज कलर्स दिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। मान लीजिए एक एंजाइटी पर्पज में अगर बच्चा है, उसको हाइपर आपने सेंसिटिविटी कहा है, कि आपने टेक्सचर के लिए उनको कलर्स दिए, किस तरह के कलर्स दिए आपने? व्हाट काइंड ऑफ हमने कलर्स आर यू पोस्टर, टॉकिंग अबाउट? यस यस एग्जैक्टली, इट्स अ गुड क्वेश्चन। हम टेक्सचर के लिए हमने पोस्टर कलर से आटा मिक्स किए, सैंड यूज किए, तो वो थोड़ा सा हैवी पिगमेंट्स हो गया, तो उसको हमने हाथ में लगाए, उसको पेस्ट किए, शेप्स बनाए, और उसी जरिए हमने क्या करते हैं उनको समझाते हैं। जब बच्चा एंगेज होते हैं, है ना, ये जो कलर्स, ये जो चीज है, जो ब्यूटीफुल चीज, उसको जो बनाते हैं तो हम एक्सप्लेन करते हैं, दिस इज द माउंटेन, दिस इज द ट्री, ये जो चीज है परसेप्शन, इस जरिए हम उसको आप उनको देते हैं। समझाते हैं? हाँ हाँ, तो तो ये ये हो गई डेफिनेटली, सिखाने की बात, ये हो गई बच्चों यस, को सिखाने की बात। तो आप कह रहे हाँ, हो कि आपने आर्ट के थ्रू ऐसे चीजों में मिक्स करके, टेक्सचर क्रिएट करके आप बच्चों को सिखाते हैं। इसमें सिखाते हैं। आज हीलिंग में का, उसके साथ इसमें उनका हीलिंग जो के बारे में हाइपर बताइए आप। सेंसिटिविटी, यस, उनका हाउ हाइपर टू, सेंसिटिविटी जो होता है, यस यस हाँ, एग्जैक्टली, आई एम कमिंग दिस पॉइंट। जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है और उनका जो क्या होता है, टैक्टाइल इश्यूज होते हैं, बार बार हर चीज को पकड़ना, नहीं तो कोई चीज को अवॉइड करना, वो भूल जाते हैं। मान लो कोई बच्चा कोई चीज को टच नहीं करता, वाटर को भी टच नहीं करते, उनको बहुत ही इश्यूज होते हैं, कलर को हाथ नहीं लगाते क्योंकि वो इतने कलर से, तो इसका क्या होता है ना, हर चीज को वो लगा हाथ नहीं लगाते, जैसे वो अपना डेली रूटीन भी काम नहीं करते, इस वजह से, ये लैक ऑफ, ये डर के वजह से। तो हमने कलर से ब्यूटीफुल चीज बना सकते हैं, और उसमें जो दिखते हैं, वो जो विजुअल लैंग्वेज होती है, इतने सारे ब्यूटीफुल चीज होता है, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे वो चीज से एक्वेंटेड होते हैं और फील करने लगते हैं कि ये चीज है। जब हम कोई एक ब्यूटीफुल एक्टिविटीज बनाएंगे तभी वो इन्वॉल्व रहेंगे। और डेफिनेटली ये कलर जब हम रेड एक्सेप्ट करके उसको ब्लू यूज करवाएंगे, ऑब्वियसली वो धीरे धीरे काम डाउन होता है, उसमें एंगेज रहता है, और धीरे धीरे पॉजिटिव साइन के अंदर आता है, वो काम डाउन होकर बैठता है, उसका सिटिंग टॉलरेंस बढ़ता है। दीज आर द प्रोसीजर जो है, टेक्निकली छोटे छोटे ये चीज है, तो है ना, ये मैंने खाली बताया कि रियली ये सब कलर्स जो है, उसमें हम कुछ सोच के नहीं, क्योंकि ऐसा मैंने कभी कभी ऐसे सोचता हूँ कि पूरी चीज को और मेसी कर दिया जाए, ये लिक्विडिटी हो जाए तो कैसा रहेगा, हम एक ओरिजिन को लट जाएंगे। ओरिजिन एक तो था, एक राइट, गैसीय का, हाँ, तो कहीं ना कहीं ये चीज लिंक होता है हमारा नेचर से, तो मैंने वही से परसीव किया और मैं इसको ऐसे यूटिलाइज किया बच्चे से, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि ये चीज थोड़ा और जा रहा है, ये रिसर्च है, काफी चीज का जो एक्सपीरियंस है, वो मैं उसको आगे ले रहा हूँ धीरे धीरे। दैट्स नाइस। सो वी ऑल आर अवेयर कि कलर की बहुत ज्यादा महत्वता है। इवन हम जैसे देखते हैं कि कोई डिजाइनर्स रहते हैं, किस तरह से कलर यूज करते हैं, जो प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं वो किस तरह से कलर यूज करते हैं, सब में ऑफ कोर्स बहुत गहरी साइकोलॉजी है, जिसकी वजह से सर्टेन कलर्स को पिक किया जाता है, सर्टेन कलर्स को अवॉइड किया जाता है। इट इज बेस्ड सिचुएशनल, सर्कमस्टांशियल, जो यूजर्स हैं वो कितने हैं, क्या एज ग्रुप में है, हर चीज पे डिपेंड करता है। मतलब देयर आर वेरियस पैरामीटर्स जिसको मद्देनजर रखते हुए लोग डिजाइन भी करते हैं, आर्ट भी करते हैं। अच्छा, राकेश जी हमें ये बताइए कि एक केस स्टडी बताइए जहाँ किसी को प्रॉब्लम थी और थ्रू आर्ट यू हैव हील्ड द पर्सन, नॉट हाँ, जस्ट कलर बट आर्ट। आर्ट, आर्ट मीन्स हम एक ह्यूज चीज लेते हैं एक्टिविटीज। मान लीजिए मैं एक टेक्निकली चीज बोलूंगा, तो एक बच्चा है, मैंने उसका नाम भी नहीं, मतलब थोड़ा सा लूंगा, उसका नाम है क्या नाम है, गुलाम करके एक है बच्चा, जो मैंने आई उड़ीसा से बिलोंग, वहाँ पे एक बच्चा है, छोटा बच्चा, वो वेरी, दो बच्चे के बारे में मैंने अब एग्जांपल दूंगा, एक मनीष करके और एक गुलाम करके। तो गुलाम जो है वो बच्चा वेरी शाय एंड वेरी नर्वस एंड वेरी लोनली, मतलब बैठेगा, मतलब एक चीज तरह की, उसको कुछ हिलने डुलने नहीं, क्योंकि वेरी, है ना, वो कुछ नहीं बोल सकता, मैं देख कुछ चीज को आई कांटेक्ट भी नहीं देता, वो चुपचाप बैठता है। और काफी मैंने ऑब्जर्व किया और काफी चीज मैंने उसमें ट्राई किया, लेकिन वो फॉर्मल चीज नहीं किया। जब मैंने उसको क्या किया, मैंने एक टी शर्ट पहनाया, टी शर्ट पहनाने से पहले मैंने पोस्टर कलर से उसको हैवी पिगमेंट से कॉलर का पूरा टी शर्ट ही पहना दिया, है ना। उसको पानी में खेलना बहुत पसंद था, ये ऑब्जर्व मैंने किया, और ठंडे पानी से,
मैंने वो कॉलर में बर्फ डाला और मैंने वो टी शर्ट को पहनाया और उसमें बहुत मजे से वो उसको रखा अपने पास, वो टी शर्ट, हाफ टी शर्ट, और उसमें मैंने बहुत सारे कलर्स को बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जगह में रखा था और वहां जाता था, वो वहां से लेता था और अपने टी शर्ट में ऐसे लगाता था। और उसमें क्या हुआ, वो मूवमेंट उसका आया धीरे धीरे, उसको उसको खाली हाथ से पानी से खेलना है बस इतना, और वो किसी के साथ नहीं मिलेगा। और 3 इयर्स चिल्ड्रन ऑटिज्म है एंड डाउन सिंड्रोम भी है, जो वो कुछ नहीं बोलते हैं, अपने चुपचाप बैठते हैं। तो मैं उसको इस तरह किया और वीकली वंस मैंने किया उसके साथ ये, और धीरे धीरे मुझे वो ऐसे खींच के लेके जाएगा कि मैं वो एक्टिविटीज और उसके बाद करूँ उसके साथ मजेदार, वो बर्फ ठंडा वाला चीज उसमें डालूं और कलर लूं, उसके बोलूं, है ना ये चीज। और मैं अलाउ करता हूँ उनका जो बिहेवियर जो है, जो जैसे करना चाहते हैं उनको इस तरह करना चाहते हैं, है ना। तो ये जो लैंग्वेज है, हम उस थ्रू से ऐसे बोल के नहीं समझा सकते उनको, हम एक्टिविटीज करवाते हैं। और मैं, मेरा मीडियम यही है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैं मेरा एक चीज करता हूँ, लोकल चीज यूज करता हूँ, सैंड यूज करता हूँ, हर चीज को, कलर को, तो होता है। और एक बंदा हाइपर सेंसिटिव ऑटिज्म है, सीवियर उसको हम बोलते हैं, कि हर चीज वो स्मेल करना, इवन बैड स्मेल, हर चीज को स्मेल करना, खाना, और वाल को भी उसको ऐसे खींच के जो पपड़ी निकलता है उसको भी खाना, वही है ना। तो कंट्रोल में नहीं था, तो कुछ चीज मैंने ऐसे किया, एक वॉल को मैंने मैंने ऐसा फ्रीडम दिया गया था कि तुम कुछ भी करो एक्टिविटीज कैंपस में, तुमको खोला है। तो मैंने कैंपस में ऐसे रखा था और मैंने हर छोटे छोटे वॉल में मैंने कलर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉल कर दिया, पुट कर दिया उसमें। और मैंने वो स्टूडेंट को कहा, मेरे क्लाइंट को कहा, यू जस्ट पिक आउट द, है ना, स्क्रैच करो, क्योंकि उसको स्क्रैचिंग बहुत पसंद है और जो निकलता था उसको खाता था मुंह में। स्क्रैच करो और थ्रो करो पेपर के ऊपर, और मैं व्हाइट पेपर रखता था और उसमें थ्रो करता था और कलर स्प्रेड होता था, उसको मजा आता था वो चीज, क्योंकि आपने इसमें कलर किस तरह से रखा? कलर किस तरह कलर से रखा, मतलब कलर कलर मैंने ट्यूब इस कैसे तरह रखा? रखा। हाँ, कलर को मैंने, वाटर कलर है तो वो निकाल के थ्रो कर सकते हैं, एक एक स्मूथ कलर है ना, उसको हम निकाल के पेपर में डाल सकते हैं, तो वो डालेंगे तो स्प्रेड हो जाता था कलर, और उसको बहुत मजा आता था। और हर कलर उसने पिकअप करता था। और धीरे धीरे मैं जब वो चीज को बंद करके मैं टेबल के ऊपर रखा कलर, उसको भूल के वो चीज में किया, तो वो चीज अवॉइड हो गया खाना, तो ये चीज आया। तो कहीं चीज जो है हमारा जो बिहेवियर इश्यूज, ये बोलते हैं एक टर्म को, तो हम उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करते हैं इस जरिए से, उसको हम फिर हम चैनलाइज करते हैं, हम जैसे एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको कर सकते हैं। तो ये काफी हेल्पफुल हुआ बच्चे लोग के लिए। ये तो कहीं सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमको ये क्रिएटिव आइडियाज लगाना पड़ता है कि हम किस तरह उनको अप्रोच बनाएं, हम किस तरह एनवायरनमेंट बनाएं ताकि वो लोग हमसे एंगेज रहे और हम जैसे चाहते हैं वो एक वेल बिहेवियर करे और एक अच्छा इंसान बन जाए आगे चल के। और काफी हेल्प भी होता है। देखो, नहीं होता है तो बच्चे और जिजिड होते हैं, चिड़चिड़ा होते हैं, उनमें एंग्जाइटी आता है ना। तो कहीं ना कहीं नुकसान होती है पेरेंट्स को, और वो चीज थोड़ा हेल्पफुल होता है। हमें वो बच्चे को एकेडमिक्स नहीं दे सकते हैं जल्दी, क्योंकि उनका बिहेवियर जो इतना हाई सेंसिटिविटी है। तो ये चीज हमें बहुत ब्यूटीफुल लगता है और काफी एक्टिविटीज होती है। और मुझे ज्यादातर मैं कलरफुल, है ना, वाइब्रेंट एंड वेरी, मैं ये सब चीज यूज करता हूँ ताकि उनको इंटरेस्टिंग है। आप सिर्फ बच्चों से काम करते हो कि आपने अडल्ट से भी काम किया है? मैंने मैंने दो, अभी 2 या 3 अडल्ट से, मैंने सीनियर सिटीजन से काम किया है, एक कपल के साथ और एक लेडी जो वो डायग्नोसिस है काफी एक बड़ा बीमारी से, जो डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन है, उनको मैंने उनको अच्छा लगता है पेंटिंग वगैरह, मैंने उनको कहा कि आप एक काम करो, एंगेज रहने के लिए खुद को, एक नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना हर चीज, कि मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, तो आप एक इंटेलेक्चुअल इंसान हो। तो मैंने उनको असेसमेंट लिया और उनको मैंने कहा कि आपको क्या पसंद है। पहले मैंने एक दिन सुना ना, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। तो मैंने जितने सारे पॉजिटिव थॉट्स थे, पॉजिटिव चीज थे, मैंने उसको नोट डाउन किया और मैंने उनके लिए 7 सेशन अरेंज किया कि इस तरह उनको से करवाएंगे। और डेफिनेटली वो धीरे धीरे ये सब मैंने सेशन लिया, उनके बाद वो एंगेज हो गए, मेडिकल टीम में रहे और जर्नल लिखने लगे।
और मुझे बाद में दिखाया, सर मैंने ऐसे ऐसे बनाया, देखिए मेरा एक्सप्रेशन। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बोला कि ठीक है, लाइफ तो कुछ भी हो सकता है, अच्छा ही लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो टिल टू डेथ कैसे एंजॉयली जीना चाहिए, तो रियली एक होपफुली जीना चाहिए, वो एक उम्मीद का कैसे एंगेज, अच्छी चीज में एंगेज रहना चाहिए। बहुत सारे हमारे जैसे थॉट्स आते हैं, हमको तो थॉट्स कभी मारेगा नहीं, हम मर नहीं जाएंगे, सो दैट थॉट को हम कैसे कंट्रोल करेंगे सर्टन टाइम के तरफ, हम कुछ कर सकते हैं। तो मैंने इसके आइडिया दिया और मैंने उनको अपना जैसे डुडलिंग आर्ट बनाए, उनका काफी चीज का कैरिकेचर करके दिया था। मैंने बोला कि अगर आपको डिप्रेशन आता है तो आपका ऐसे से, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल थे, तो क्या किया, मैंने जस्ट स्पार्क कर दिया उनको। फिर जब अपने ड्रॉ करने लगे और उनके सराउंडिंग में जो चीज पॉजिटिव होता था, तो वो सब ड्रॉ करते थे, कलर भरते थे, और उनको जो अच्छा लगता था वो कैरी ऑन करते थे। तो कम से कम वो दिन में 2 घंटे अपने चीज के लिए देते थे। और जब वो वेरी हीलिंग, मतलब ये चीज उनसे हम बहुत ही, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये चीज हुआ है। और कपल के साथ मैंने किया था, और शायद उनके बीच में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था, तो ओके। मैंने कहा कि आप काम कीजिए। हाँ, यस। हाँ बताइए। हाँ, उनके बहुत सारी चीज ऐसे होता है, नॉर्मल चीज में वो बहुत ही एंग्जाइटी और स्ट्रेस फील करते थे कि हमने काम किया, हमने ये किया, हमने वो किया। तो मैंने कहा कि आप देखो, वो बहुत सत्संग जाने लगे, बहुत सारी चीज की है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होते। मैंने कहा देखो, तुम लोग एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, तुम क्या करना चाहते हो? ऐसा है ना कि ह्यूमन, हम मर जाएंगे तो हम कुछ कर नहीं किए, मर जाएंगे, हमारा लाइफ वेस्ट गया। मैंने ऐसा कहा कि तुम एक कुछ राइटिंग करते हो तो लिखो, एंड अगर तुमको अगर चाहिए कुछ रिलेटेड पिक्चर फाइंड आउट करो, तो पेस्ट करो। अगर नहीं आता, यू जस्ट ड्रॉ 1 लाइन एंड 2 लाइन, एंड देन यू शुड यूज सम पेंट। मैंने उनको छोटा सा वाटर कलर दिया और ये बोला, और मैंने कुछ डेमो, मैंने जैसे कविता राइटिंग किया और मैंने उनको बताया कि ऐसे देखो मैं भी करता हूँ। उनको अच्छा लगा। और क्या हुआ, कविता के बारे में एक हस्बैंड ने वाइफ के बारे में लिखा, वाइफ ने हस्बैंड, और वो क्यों ब्यूटीफुल बॉन्ड बना, और देखे और कम्युनिकेट होने लगा पॉजिटिवली। और ये सब ना, ये कोई है नहीं, हमें उस चीज में बातें करने के लिए कम्युनिकेट, जैसे मैंने आपसे बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया, ये कम्युनिकेशन, ये जरिया, ये सब चीज एक जरिया होता है, पॉजिटिव मैनर होता है, उसको हम लाते हैं, फिर बैठते हैं, फिर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो ये काम करता है हर चीज। और इसको रिकल करता है हमारा क्या होता है, हमारा ब्रेन और हमारा चीज, जो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा एक ब्यूटीफुल पॉजिटिव वे। आर्ट हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, एवरीथिंग जो भी है ना, ये चीज। थैंक यू राकेश जी फॉर कमिंग एंड टॉकिंग टू अस अबाउट Yeah, आपके आर्ट थेरेपी से आप कैसे लोगों को प्रभावित करते हो और कैसे हील करते हो। ये एक माना माना हुआ साइंस है कि कलर और आर्ट दोनों साइकोलॉजिकली हीलिंग के लिए यूज होता है। देयर इज yes, प्रॉपर देयर आर बुक्स ऑन इट, देयर आर थियोरीज, वेरियस प्रिंसिपल्स जो साइकोलॉजिस्ट खुद यूज करते हैं और आम जिंदगी में भी लोग यूज करते हैं, जो क्रिएटिविटी मतलब फॉलो करते हैं। जैसे पैकेजिंग डिजाइन में भी देखा जाता है, हमारे डिस्प्ले डिजाइन में देखा जाता है, कई जगहों पे हमें देखा जाता है कि हम ये देखते हैं कि कैसे कलर की बहुत पॉजिटिव यूज होती है। So it's good that you told us this little part about कैसे autism और other children को with cerebral palsy and with mental retardation and things like that, कैसे उनको हम कलर्स के थ्रू, आर्ट के थ्रू फील करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। राकेश जी की पेंटिंग्स हमारे शो में है। इट्स ऑल स्प्लैशेस ऑफ कलर, रंग बिरंगी वाइब्रेंट कलर्स हैं इन पेंटिंग्स के। डू टेक अ लुक, और जितना ज्यादा बड़ा कैनवास है उतना आपको उनका कलर का प्लेट दिखेगा। रियली, हाँ रियली उसको एंजॉय लगता है, और उसको पता चलता है कि उसका जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो चीज को हम उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो कलर मैंने टोन्स यूज किया हुआ है उसी हिसाब से। और मैंने काफी टाइम, जैसे बोलते हैं ना, आ गया कर लिया, ऐसा नहीं, हम बैठते हैं और मैं बैठता हूँ, और उससे जो कलर्स मुझे जो लगता है कि मैं ह्यूमन, और मेरे जैसे ह्यूमन जैसे लोगों को भी ऐसा लगेगा, तो ये चीज जब मैं जैसे देखता हूँ और फिर मैं वो कलर टोन को यूज करता हूँ काफी टाइम लगा के चीज को, है ना,
तो कहीं ना कहीं ये चीज मुझे इतना किया और लोगों को भी अप्रिशिएट होते हैं और लोगों अच्छा भी लगता है और मुझे अच्छा लगता है कि ये लोग कि हर ज्यादातर हर समझे हर हर रंग चीज का को। अपना फ्रीक्वेंसी होता है जो हाँ, व्यूअर के साथ में कम्युनिकेट करता है और हमको भी प्रभावित करता है. ये Thank you, Rakesh ji, and thank you everyone for being here with us. Do take a look at our exhibition. It's at gallerypradarshak.com. और थैंक यू अगर आप प्रदर्शक ऐप गैलरी। कोई हमें कुछ कहना चाहे तो प्लीज इंस्टा पे मैसेज करके let us have a chat. Thank you so much for being here. We'll be back next Thursday again with yet another artist talking to you about art and abstraction. Bye bye. थैंक यू सो मच।